Jai Shri Mahakal. Thank you for being part of Planets Through Nakshatra course. This is not a full-fledged Nakshatra course, लेकिन हम इस कोर्स में पढ़ेंगे हर एक ग्रह, हर एक नक्षत्र में क्या रिजल्ट देता है और उसकी क्या रेमेडीज होती हैं. So we know that the very first nakshatra is Ashwini Nakshatra. But if you go through the South Indian astrology, the first nakshatra is the Kritika Nakshatra and last nakshatra is the Bharni Nakshatra. उसके पीछे कुछ वजहें हैं, कुछ रीजंस हैं, जिसमें सबसे पहला रीजन तो है कि कृतिका इज द बिगिनिंग, कृतिका इज द फायर ऑफ क्रिएशन एंड भरनी इज रूल्ड बाय यमा विच इज यमराज एंड दैट इज द एंडिंग ऑफ द लाइफ. But if you take Andhra system or if you take the North Indian system, the first nakshatra would be Ashwini. Now, most of you would be already knowing the Ashwini as the first nakshatra. Now, why we take Ashwini is because it is ruled by Ketu. And Ketu is our immediate past. You know, what we are coming through. And that's why we are taking Ashwini as the first nakshatra. And because of the society norms, I'm going to teach you Ashwini as the first nakshatra. But you should be knowing that if you take the South Indian system and if you go in really depth of astrology, which we would be going in the, when we'll be learning nakshatras in very depth, तो उसमें हम पढ़ेंगे that the first nakshatra is Kritika only and why we truly consider Kritika as the first nakshatra and not Ashwini as the first nakshatra. So I have divided this video into some parts. I have made some notes to divide it. Firstly, we are going to start with Ashwini. नाउ अश्विनी पड़ता कहाँ है? अश्विनी स्काई में किस चीज का पार्ट है? सो इन द स्काई द अश्विनी इज इन द एरीज. नाउ आप लोग जो भी एरीज के ट्रेट्स सुनते हो, इन रियलिटी वो सभी के सभी अश्विनी के ट्रेट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो एरीज एग्रेसिव होते हैं, एरीज फास्ट होते हैं, एरीज जो है वो इम्पल्सिव होते हैं. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर नॉट एरीज, but in reality that is Ashwini Nakshatra and not even the first two padas of Ashwini. It's actually the second and third pada of Ashwini, which we will be learning in the detailed astrology course. But for now we are gonna go through simple Ashwini and then we are gonna go through all the planets through Ashwini with the remedies. So the Ashwini falls in the Aries and Aries is the beginning. Aries is the beginning of the zodiac belt. ज़ोडिएक बेल्ट एरीज से शुरू होकर के पाइसिस पर खत्म होती है. तो ये बहुत अच्छे बिगिनर्स होते हैं. एरीज में जो नक्षत्र है अश्विनी, अश्विनी वाले बहुत अच्छे बिगिनर्स होते हैं लेकिन बहुत अच्छे फिनिशर्स नहीं होते. सो द हुक लाइन दैट आई ऑलवेज यूज फॉर अश्विनी नक्षत्र इज दैट दे आर वेरी गुड बिगिनर्स बट दे आर नॉट वेरी गुड फिनिशर्स. ये ऐसे लोग होते हैं जो मे बी दे स्टार्ट राइटिंग बुक and after a while if you ask them how about the book that you were working on, they'll be saying यार वो ना मजा सा नहीं आ रहा, वो हुआ नहीं अभी तक. and if they join gym they are gonna pay the fees for like पूरे साल की फीस भर देंगे और उसके बाद 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता जिम जाएंगे. उसके बाद आप पूछोगे तो कहेंगे अरे मेरे सर्वाइकल हो जाता है, मेरे बैक एक हो जाती है. सो बहाने बहुत ज्यादा होते हैं अश्विनी के पास. लेकिन अब इसका पॉजिटिव वे में यूज कैसे किया जाता है? ये बहुत अच्छे इनिशिएटर्स हैं. दे आर द वंस हु आर इनिशिएटर्स. दे आर गोना टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एनीथिंग दैट इज थ्रोन एट देम. सो इफ यूल बी लुकिंग एट सीईओज और प्रोजेक्ट मैनेजर्स और somebody who is like running a very good company, very big company and they need to make quick decisions on some things, वो क्विकनेस और वो क्विक डिसीजंस अश्विनी के पास हैं because they are very good at faster calculation, at fast thinking and doing the things at first. अब देखेंगे बहुत सारी चीजें जो न्यू इनोवेशंस हैं, जो चीजें नई शुरुआत हुई हैं, वो सभी के सभी अश्विनी के अंडर आती हैं. उसके अलावा नाउ बिकॉज दे आर द वेरी गुड बिगिनर्स, इफ इट इज रॉन्गली प्लेस्ड तो दे विल बी एट द बॉटम ऑफ द स्टैक. फॉर एग्जाम्पल आर्मी में बहुत सारी लाइंस ऑफ डिफेंस होती हैं. देयर इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, दैट इज अश्विनी. बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो अश्विनी है बिकॉज दे आर द फर्स्ट वंस
who are gonna fight with the enemy. They are the first ones who are probably gonna die at first, and then उसके बाद first line of defense, फिर second line of defense, and so on. And the guy on the top of the stack would be the one dying at last. So अगर अश्विनी wrongly place हो जाए तो they are the first to die because they are the ones जिनको सबसे आगे भेजा जाता है, and they are also the risk takers. They love to take risks. The Ashwini would be the one who will be doing skydiving, who will be going through, bungee jumping, skydiving, bungee jumping, and all the adventurous sports. They're gonna love it. Next thing, because the first 13 degrees and 20 minutes of the Aries, that is where the Ashwini is falling. This is the most impulsive part of Aries, the most aggressive part of Aries. The most initiations begin in the first 13 degrees and 20 minutes of Aries, because that is where the Ashwini is falling. And they don't want to analyze the things. They are not the ones जो बहुत ज़्यादा calculative चलता है. No. Calculative कौन चलता है? वो उत्तरा फाल्गुनी चलता है. For example, अगर मैं अश्विनी हूँ और आप मेरे पास कोई प्रोजेक्ट लेकर आते हो, तो मैं कहूँगा हाँ ठीक है, let's do it now. Let's do it right away. I don't want to wait. मुझे वेट नहीं करनी है, मुझे जो चाहिए अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, ये अश्विनी है. और अगर मैं आपके पास कोई प्रोजेक्ट लेके आता हूं और आप उत्तरा फाल्गुनी हो, तो मैं आपको प्रोजेक्ट पूरा एक्सप्लेन करूंगा, उसके प्रोज कॉन्स सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा. उसके बाद भी आप कहोगे ओके, आई नीड सम टाइम टू रिसर्च. मुझे सोचने का टाइम दीजिए, मेरे को सब देखना है, इसके डेमोग्राफिक्स क्या हैं, इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, इससे किसी को हर्ट तो नहीं हो जाएगा, एंड ऑल दोस थिंग्स. दैट्स कैलकुलेशन ऑफ उत्तरा फाल्गुनी, स्पेशली द उत्तरा फाल्गुनी विच इज फॉलिंग ऑन द वर्गो साइड. रादर एरीज एंड स्पेशली अश्विनी, this guy, he's not gonna think much. He's just gonna go through it. For example, he likes somebody, he's gonna say, okay, I like you, do you like me? If you like me, let's date for a while. And if it works out, it works out. Otherwise, bye bye, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते. ठीक है? तो ये जो है, ये अश्विनी नक्षत्र का बेसिक थीम है जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं. अब यदि आप अश्विनी का कास्ट देखें, अब अश्विनी को बहुत बुक्स में लिखा गया है दैट दे आर एक्सेलेंट हीलर्स, दैट दे आर मोर रिलेटेड टू आयुर्वेदा एंड ऑल दोस थिंग्स. बट इफ यू सी द कास्ट, जो कास्ट है वो वैश्य है. वैश्य, ट्रेड, बिजनेस. सो गिव एंड टेक के ऊपर अश्विनी बहुत काम करता है. अश्विनी बिलीव्स इन बार्टर सिस्टम. ओके, मैं तुम्हारे लिए ये करता हूं, तुम मेरे लिए ये कर दो. गिव एंड टेक के ऊपर अश्विनी बहुत ज्यादा बिलीव करता है, बिकॉज दैट्स अ ट्रू बिजनेस फॉर अश्विनी. Another thing, I have seen a lot of bankers and a lot of people successful in money in and money out situations, and somebody जो हर चीज में बिजनेस ढूंढ लेता है. हर चीज में बिजनेस आइडिया जो है अश्विनी के पास है. और याद रखना, अश्विनी, बिकॉज दे आर वेरी गुड बिगिनर्स एंड नॉट द वेरी गुड फिनिशर्स, इन लोगों से एडवाइस लेकर बहुत सारे लोग मिलियनियर्स बन सकते हैं, क्योंकि $1 मिलियन आइडियाज इनके ब्रेन में आते हैं, लेकिन ये लोग अपनी इंपल्सिव नेचर के कारण उसको भूल जाते हैं और उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते. मैं हमेशा अश्विनी को एक बात कहता हूं, कीप अ कॉपी पेन विद यू, कीप अ नोट पैड ऑन द साइड ऑफ योर बेड, बिकॉज रात को 3 बजे भी अगर आपको कुछ दिमाग में आ रहा है, उसे नोट कीजिए और उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो. लैक ऑफ इंप्लीमेंटेशन इज इन अश्विनी नक्षत्र. यदि तो मौके पर हो गया तो हो गया, अगर उन्होंने कोई भी टास्क डिले कर दिया, फिर वो काम जल्दी नहीं होता है, एंड दे वर्क ऑन डेडलाइंस. इफ देयर इज नो डेडलाइन, दे आर नॉट गोना वर्क. So this is the basic theme and very interesting theme of Ashwini. We are also going to learn the story of Ashwini, which we are going to do in like 2-3 minutes. Next, the bird related to Ashwini is the eagle. So see, दो चीजें हैं ईगल के बारे में, जिसमें सबसे पहली चीज तो ईगल के बारे में है, they set the target from very far away. बहुत दूर से अपना टारगेट सेट करती है ईगल, and then it goes for it, और बाकी सब कुछ उसके लिए ब्लर हो जाता है. तो आई ऑलवेज से टू अश्विनी पीपल दैट सेट अ टारगेट एंड जस्ट वर्क ऑन इट. ये आपने अगर एक चीज नोटिस की हो, क्योंकि इसको हॉर्सेस के साथ भी रिलेट किया गया है, इस नक्षत्र को क्यों किया गया हम आगे पढ़ेंगे.
हॉर्सेस के आगे वो लगा देते हैं, यू नो, सो दैट दे सी इन अ सिंगल डायरेक्शन। क्योंकि अश्विनी में एक प्रॉब्लम होती है, ये ना इसके दिमाग में आता है मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं ऐसे भी कर लूं, मैं वैसे भी कर लूं। सो दैट ईगल एंड दैट हॉर्स इज एक्चुअली टेलिंग दिस अश्विनी कुमार, टेलिंग दिस अश्विनी नक्षत्रा टू बी सिंगल फोकस्ड। एक जगह पर फोकस होना जरूरी है। ये टॉर्च होते हैं, इनको बीम, लेजर बीम बनना है। ये अश्विनी की खासियत है, ये टॉर्च होते हैं, इनको सब कुछ थोड़ा 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 हर चीज के बारे में पता होता है, लेकिन मास्टरी नहीं होती। दे आर द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। Although jack of all trades is a good thing to be, but still they need to focus on a single target to achieve that target, right? दूसरी चीज जो ईगल के साथ रिलेटेड है कि वो बहुत ज्यादा हाइट पर उड़ सकती है, एंड मोस्ट ऑफ द बर्ड्स ईगल के साथ पंगा नहीं लेते। देयर इज ओनली वन बर्ड दैट यू नो ट्राइज टू हार्म द ईगल, दैट इज अ क्रो। लेकिन क्रो को ईगल खुद कुछ कहती नहीं है, वो खुद इतनी हाइट पर चली जाती है कि वहां पर क्रो सरवाइव नहीं कर पाता और वो नीचे गिर जाता है। तो इन लोगों को अपना टारगेट फिक्स करके चलना चाहिए, इन लोगों को अपनी हाइट्स को अचीव करने पर फोकस करना चाहिए, अपनी तरक्की पर फोकस करना चाहिए, रादर देन यू नो बीइंग फाइटिंग विद अदर पीपल। एंड यू नो अगर ये किसी के साथ उलझ गए फिर ये खुद राइज नहीं कर पाते। ये अश्विनी का एक और ट्रेड है। Now, because it is related to the higher altitudes, तो इन लोगों को स्पेस का बहुत शौक होगा, रॉकेट्स का बहुत शौक होगा, एयरपोर्ट्स पर बैठने का, एयरपोर्ट्स पर टाइम स्पेंड करने का बहुत शौक होगा, और they'll be obsessed with sky and they'll be obsessed with hills, mountains and everything that's on the top of the world. They're gonna love it. Now, there are the two sides of Ashwini, because they are the two horses. But because before telling this two sides, I'm going to tell you some stories about Ashwini Nakshatra. And in fact, because you have paid for this course, I'm going to tell you how to use the sounds of this nakshatra. You know, इसकी जो sounds हैं वो किस तरह से use होती हैं वो हम थोड़ा बाद में रखेंगे, because I might put some part on the YouTube for everybody, but you have paid, so you're going to get something extra. So the very first story of Ashwini should be the birth story, right? So birth story is mentioned in the Vishnu Puran in 2.3. विष्णु पुराण कहता है कि जो सूर्य था, सूर्य की एक वाइफ थी जिसका नाम था संजना, एंड संजना के साथ सूर्य के 3 जो हैं बच्चे थे। द फर्स्ट चाइल्ड वाज मनु, उस मनु से हम ह्यूमंस का बर्थ हुआ। Second child was Yama, which is the Yamaraj, of course, the god of death. And the third was Yami, which is the sister of Yamaraj. और संजना सूर्य के हीट को बहुत ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, तो वो थोड़ी थोड़ी बीच में ब्रेक्स ले लेती थी। और क्योंकि संजना नहीं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड अकेले रहें, और वो हीट से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तो एक दिन संजना ने डिसाइड किया कि वो अपना रेप्लिका बनाए। तो उसने अपना रेप्लिका बनाया जिसका नाम था छाया। वो रेप्लिका हूबहू संजना जैसा था, लेकिन वो सूर्य को काफी समय तक पता नहीं चला कि वो संजना के साथ नहीं बल्कि छाया के साथ रह रहा है। और फिर छाया से उसके आगे फिर 3 बच्चे हुए जिसमें शनि इन्वॉल्व हैं, द सन ऑफ सूर्य इज सैटर्न। उसमें मनु, द सेकेंड मनु इज ऑल्सो इन्वॉल्व, एंड द ताप्ती विच इज द रिवर इज ऑल्सो इन्वॉल्व। तो काफी समय बाद जब ये छाया अपने बच्चों के साथ रहती थी, तो छाया ने एक दिन यमराज को कर्ज कर दिया। नाउ बिकॉज यमा वॉज नॉट द ट्रू चाइल्ड ऑफ छाया, ही वॉज द चाइल्ड ऑफ संजना। तो ये सूर्य को रियलाइज हुआ कि ये मां नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी मदर अपने बच्चों को कर्ज नहीं कर सकती। तो सूर्य संजना को ढूंढने के लिए चले गए, और जब वो कहानी कहती है कि जब वो ढूंढने गए तो उन्हें पता चला कि संजना एक मेयर के रूप में, यानी कि एक फीमेल हॉर्स के रूप में जंगलों में मेडिटेट कर रही है। तो सूर्य ने भी हॉर्स का रूप बनाया और एक घोड़े के रूप में वो उस संजना से मिले, और उनके मिलन से 3 बच्चों को एक्चुअली जन्म दिया गया, जिसमें से एक ट्विन था अश्विन कुमार्स। अब कहानी यदि आप महाभारत में चले जाएं
तो महाभारत मेंशन करता है, मैंने यहां लिखा था कि किस पॉइंट में करता है जी, महाभारत के द्रोणा चैप्टर 62.3 में एक बात मेंशन है जो कि मेल प्रेगनेंसी के रिलेटेड है, उस पर मैं 1 मिनट के बाद आता हूं। अभी मैं आपको एक बात बता रहा था, यस, इन महाभारता आदि 66.35 में ये मेंशन है कि अश्विन कुमार जो हैं दे वर नॉट बॉर्न एज अ नेचुरल बर्थ, in fact they were born out of the nostrils of the female horse which was Sanjana at that time। तो वो उनका जो जन्म है वो अनएक्सपेक्टेडली और नोस्ट्रिल्स से हुआ, नेचुरली नहीं हुआ। तो इससे जब आप एस्ट्रोलॉजी निकालोगे यू विल सी अ लॉट ऑफ unexpected pregnancies and that children are taking birth under Ashwin Nakshatras। You will see this in a lot of charts, you will see this. Or the one person, one partner might have tricked another partner to be together in the bed for some moments and then the Ashwin Nakshatra person would be taking birth। So वो tricks के साथ भी पैदा हुए हो सकते हैं और unexpectedly भी पैदा हुए हो सकते हैं। That is the first story about Ashwini Nakshatra। Sorry for this। Yeah। नाउ कहा जाता है कि ये जो अश्विनी नक्षत्र है, जो अश्विन कुमार थे, दे आर द फिजिशियंस टू द गॉड्स बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज अबाउट हर्ब्स, नॉलेज अबाउट आयुर्वेदा एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। ऑल्दो ये नॉलेज इनको खुद नहीं मिली, बहुत सारी नॉलेज है जो इनके पास नेचुरली थी और बहुत सारी नॉलेज है जो इन्होंने अलग अलग जगह से इकट्ठी की। फॉर एग्जाम्पल दे ऑलवेज वॉन्टेड टू बी इन द पार्ट ऑफ देवास, देवताओं के पार्ट में वो आना चाहते थे। तो उसमें एक कहानी है कि इंदिरा के पास सोमा यानी कि एक्सलियर यानी कि अमृत बनाने की एक टेक्निक थी और वही सेम टू सेम टेक्निक एक ऋषि थे जिनका नाम था दादिची। दादिची के पास भी थी। ये स्टोरी मेंशन है ऋग्वेदा 22.116 में। तो दादिची को इंदिरा ने श्राप दिया बिकॉज इंदिरा नेवर वांटेड दिस नॉलेज टू गो इन द रॉन्ग हैंड्स। तो इंदिरा ने दादिची को यह श्राप दिया था कि ये नॉलेज जो अमृत की नॉलेज है, अमृत बनाने की नॉलेज है, ये किसी के पास नहीं जानी चाहिए और यदि तुम अपने मुंह से इस नॉलेज को किसी को दोगे तो तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। दिस वॉज द कर्स गिवन बाय इंदिरा टू द दादिची। अब अश्विन कुमार बहुत बड़े प्रैंकस्टर थे और ये बहुत बड़े जुगाड़ू भी थे। याद रखना, अश्विन बहुत बड़े जुगाड़ू होते हैं और बिकॉज दे आर द नेचुरल बॉर्न सर्जन्स, तो इन्होंने दादिची को कन्विंस कर लिया कि हम तुम्हारा सर काटेंगे, उसे प्रिजर्व करेंगे और तुम्हारे सर की जगह एक हॉर्स का सिर लगाएंगे और तुम उस हॉर्स के सिर से हमें ये नॉलेज दे देना और फिर इंद्र के श्राप के कारण तुम्हारा हॉर्स का सिर कट जाएगा और हम तुम्हारा असली सिर वापस से तुम्हारे ऊपर लगा देंगे। और दादिची एग्री कर गए। तो कुछ इस तरह की ट्रिक के साथ इन्होंने दादिची से वो एक्सलियर बनाने का यानी कि अमृत बनाने का, सोमा बनाने का जो फॉर्मूला है वो हासिल किया। यहां से पता लगता है अश्विन कुमार कैन गो टू द हुक एंड क्रुक काइंड ऑफ थिंग टू अचीव समथिंग दे वांट एंड इन फैक्ट दे डोंट डिपेंड, ये दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। अब ये नॉलेज इंदिरा के पास थी, इंदिरा ने देने से मना कर दिया, लेकिन इन्होंने इंदिरा पर डिपेंड नहीं किया। दे फाउंड द अदर वे। तो इन लोगों को ऑब्स्टेकल्स में फंसाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये हमेशा जुगाड़ू होते हैं। ये कोई और रास्ता ढूंढ लेते हैं अपने कार्य को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने वो सिर वापस से दादिची का लगा दिया और नॉलेज भी ले ली और उसका कर्ज जो है वो भी रख लिया। Another thing about Ashwini is that they are very good at curing blindness। बहुत जगह पर blindness cure का जिक्र मिलता है। मैं आपको 2 कहानियां यहां सुनाऊंगा। पहली कहानी है जो एक दोस्त उनका बना, उसकी उन्होंने ब्लाइंडनेस को क्योर किया। ये मेंशन है ऋग्वेदा 16.115 में। कहानी ये कहती है, अब क्योंकि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया कि ये 2 घोड़े हैं, एक घोड़ा नहीं है, राइट, दे आर द ट्विंस। इसमें से एक बहुत सीरियस था और एक बहुत शरारती था। तो पहला शरारतें करता था और सीरियस वाला उन चीजों को बचा लेता था। तो अब होता क्या है, अश्विन की 2 पर्सनालिटीज होती हैं। एक तो उनके अंदर बहुत ही शरारतीपन होता है,
दूसरा उनके अंदर बहुत ही ज्यादा शराफत भी होती है, उनसे ज्यादा शरीफ भी कोई नहीं है और उनसे ज्यादा शरारती भी कोई नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो इनमें से एक अश्विन ने एक वुल्फ का रूप लिया और एक दोस्त बनाया, एक बच्चा था, वो यंग मैन था, उसको दोस्त बनाया। और इस वुल्फ को उस बच्चे ने, उस आदमी ने 100 शीप्स, 100 भेड़ें खिलाई। और जब ये बात उसके पिता को पता चली कि मेरे बेटे ने 100 भेड़ें जो शहर में से चुरा करके एक वुल्फ को खिलाई हैं, तो उसने अपने बेटे को कर्ज कर दिया कि जा आज से तू अंधा हो जाए, तुझे वो भेड़ें दिखे ही ना, ऐसे तो तू मेरी जो नाक है कटवा रहा है। तो ये बच्चा जो है ब्लाइंड हो गया। अब इस ब्लाइंडनेस को क्योर किया अश्विन कुमारों ने। ठीक है, दूसरी स्टोरी जो ब्लाइंडनेस के साथ रिलेटेड है, नाउ सी दे आर वेरी गुड एट मेकिंग द प्रैंक्स। ये प्रैंक्स करने में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। द बेस्ट प्रैंकस्टर्स आर अश्विन कुमार्स। ओके, बट उसी सिचुएशन को समेटने में भी बहुत अच्छे होते हैं। जो इन्होंने खराब किया होता है उसको क्योर करने की भी ये पूरी कैपेबिलिटी रखते हैं। दूसरी स्टोरी है च्यवनप्राश। आप लोगों ने सुना होगा, च्यवनप्राश जो है वो रेसिपी च्यवन ऋषि की रेसिपी है और ये अश्विन कुमारों ने कैसे हासिल की उसकी स्टोरी है। तो एक लड़की थी जिसका नाम था सुकन्या। ये स्टोरी जो है मेंशन्ड है 2 जगह पर, एक तो है देवी भागवता का 7th में एंड श्री भागवतम का 9.3 में ये स्टोरी मेंशन्ड है। स्टोरी कहती है जो लड़की थी सुकन्या, उसने एक दिन एक एंट हिल देखा, जो एंट्स होते हैं उनका घर देखा, और उस एंट हिल में उसको 2 चमकती हुई चीजें नजर आई जिसको उसने पोक कर दिया। असल में वो च्यवन ऋषि थे जो बहुत सालों से वहां तपस्या कर रहे थे और उनके ऊपर वो एंट हिल बन गया था। लेकिन इस लड़की के उस पोकिंग के कारण वो ब्लाइंड हो गए। ड्यू टू दिस थिंग विच शी डिड टू हिम, उसने उन्हें अंधा कर दिया था। तो उसकी एवज में उसने उनसे शादी कर ली और कहा कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारी जो है आंखें बंद कर रहूंगी और मैं तुम्हारी पूरी सेवा करूंगी। और ये लड़की इतनी ज्यादा डेडिकेटेड थी टुवर्ड्स हर पार्टनर, इसने च्यवन ऋषि को अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट किया था और उनके लिए सारा कुछ करती थी। अब ये लड़की बहुत ब्यूटीफुल थी। तो एक दिन, अब अश्विन कुमार दे फॉल फॉर ब्यूटी बिकॉज दे आर वेरी ब्यूटिफुल एंड दे आर नोन फॉर दे आर वर्शिप्ड फॉर द ब्यूटी एज वेल। ये पावर वैगोर एंड ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं, वो उस पर हम अभी बाद में आते हैं। तो ये लड़की के पास एक दिन अश्विन कुमार पहुंचे और अश्विन कुमारों ने इस लड़की को कहा, जिसका नाम सुकन्या था, कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, तो हम में से किसी एक के साथ शादी कर ले। वी लव यू, सो इफ यू कुड मैरी अस दैट्स गोना बी गुड। तो सुकन्या ने साफ मना कर दिया और कहा कि नहीं, आई एम मैरिड टू च्यवन ऋषि एंड इफ यू विल फोर्स मी अगेन आई एम गोना कर्स यू। तो नाउ रिमेंबर, अश्विन कुमार्स आर prone to the curses of other people। कभी भी अश्विन नक्षत्र वाले इंसान को ऋषियों का, धर्मों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इनको कर्स मिल जाता है। दे आर इजीली कर्स्ड, दे आर वेरी मच prone to the curses, so don't be that अश्विन। ओके, तो अश्विन कुमारों को पता था कि उनको कोई ना कोई श्राप अगर मिला तो वो उनको नेगेटिवली इफेक्ट करेगा, तो उन्होंने इसको छोड़ दिया लड़की को। लेकिन इसको एक ऑफर दी कि अगर हम तुम्हारे हस्बैंड च्यवन ऋषि की ब्लाइंडनेस को क्योर कर दें और हम उन्हें दोबारा से जवान और सब कुछ जैसे का तू चाहती है, तेरा ड्रीम हस्बैंड, अगर हम उनको वैसे का बना दें, तो क्या तू हमसे शादी करेगी? तो इसने ये बात पर फिर मना कर दिया। तो फिर इन्होंने कहा ठीक है, तू हमसे शादी मत करना, लेकिन हम तेरे को एक और ऑफर देते हैं, हम इसको क्योर कर देते हैं, लेकिन उसके बाद हम तीनों, यानी कि अश्विन कुमार 1, अश्विन कुमार 2 एंड द च्यवन ऋषि, हम तीनों एक ही जैसे दिखेंगे और तू हम तीनों में से जिसको चुनेगी उसके साथ तू अपना वैवाहिक जीवन जो है वो कंटिन्यू करेगी। तो लड़की ने जाकर के ये बात च्यवन ऋषि से कही। च्यवन ऋषि मान गए कि हाँ ठीक है, ये मुझे क्योर करेगा, फिर हम तीनों एक जैसे दिखेंगे और जिसको सुकन्या चुनेगी उसके साथ वो अपना विवाहित जीवन कंटिन्यू करेगी। और
अश्विन कुमारों ने उसको पूरी तरह ऋषि को जो है क्योर किया और उसके बाद जब वो नदी से वापस आए तो देवर लुकिंग एग्जैक्टली सेम, हूबहू सेम थे, लेकिन स्टिल द डेडिकेशन ऑफ सुकन्या टूवर्ड्स हर हस्बैंड वाज सो मच कि इन्होंने, सुकन्या ने सही ऋषि को ही अपना हस्बैंड चुना और फिर अश्विन कुमारों ने हाथ जोड़ करके इन्हें अकेला छोड़ दिया। तो यहां से एक चीज और पता लगती है, अश्विन जो नक्षत्र है, they might provoke you for some things, they might give you challenges, and if you win they are going to leave you, they're not going to disturb you after that, but they might give you challenges, they might tell you कि हाँ चल ये करके दिखा, चल ये करके दिखा, अच्छा अगर मैंने ये कर लिया तो ये शर्तें भी लगाते हैं, ठीक है। Another story that I wrote about Ashwini is again about the healing, which is in the Mahabharata Drona chapter 62.3. एक बार एक मेल प्रेग्नेंट हो गया और उस मेल को नेचुरली बर्थ देने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, तो अश्विन कुमारों ने सी सेक्शन, सिजेरियन कर करके उस बच्चे को जन्म दिया। तो यहां से उनका कैपेबिलिटी ऑफ सर्जरी दिखता है, यहां से उनका कैपेबिलिटी ऑफ द मेडिकल साइंसेस दिखता है, विच इज लाइक द एक्सट्रीम लेवल ऑफ हीलिंग इज कनेक्टेड विद अश्विनी कुमार्स। ओके, नाउ दिस इज अ बेसिक स्टोरी अबाउट अश्विन. There are a lot of other stories as well which we might discuss in advanced course where we'll be going in depth of the nakshatras, but अभी के लिए this story is enough to be with you guys. अब हम शुरू करते हैं प्लैनेट्स के साथ. नाउ बिफोर टेलिंग यू द प्लैनेट्स थ्रू द नक्षत्रास, बिफोर टेलिंग यू द ascendant in Ashwini and the remedy, sun in Ashwini and the remedy, moon in Ashwini and the remedy, we should be discussing about the sounds of Ashwini and how you should be using it.